Hello student, welcome in the class of statistics. In the last class मैंने आपको बताया था कि why there are two lines of regression और उनका क्या यूज होता है. एक थी regression equation of y on x and another was regression equation of x on y. Regression equation of y on x is used to predict the value of y for any given value of x, and regression equation of x on y is used to predict the value of x for any given value of y. और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम चाहें तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x का यूज x की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगी दैट इज नॉट सो एक्यूरेट एज in the case when we predict it using the equation of x on y. ठीक है, तो रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इसका रीजन क्या है in my last lecture. तो if you want to recall it again, you go to that lecture. Okay, lecture number that is 11. Okay, this is lecture number 12. So in this lecture I will told you about regression coefficients. Regression coefficients क्या होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम काफी सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. So please listen this video carefully. And if you like my lectures, please share it, subscribe my channel, okay, for any new video on this lecture, on this topic, okay. So let's start. Regression coefficients. There are two types of regression coefficients. One is regression coefficient of y on x, which is obtained by using the regression equation of y on x. तो regression equation y on x क्या होती है? y minus y bar is equal to mu11 over sigma x square into x minus x bar, और y minus y bar is equal to r sigma y upon sigma x into x minus x bar. यहाँ पर जो स्लोप होता है लाइन का, इस केस में जो स्लोप है वो है mu11 over sigma x square. स्लोप होता है कोफिशिएंट ऑफ x. So coefficient of x in this case is mu11 over sigma x square, and here it is r sigma y over sigma x. दोनों ही चीजें इक्वल हैं क्योंकि कोवेरियंस को रिप्लेस करते हैं जब हम इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है. सो इन दोनों को ही हमको रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x कहते हैं. This is called regression coefficient of y on x and is denoted by byx. By yx notation इसलिए रखा गया है क्योंकि ये regression coefficient है y on x. लिए पहले y सबस्क्रिप्ट है, उसके बाद x है. तो byx की वैल्यू क्या है? mu11 over sigma x square, which is again equal to r sigma y over sigma x. Another one is regression coefficient of x on y, which is obtained by regression equation of x on y. Regression equation of x on y is given by these two equations. Here the coefficient of y is mu11 over sigma y square. यहाँ पर स्लोप नहीं होता है, स्लोप केवल इस इक्वेशन के केस में होता है. यहाँ पर स्लोप की वैल्यू बी बाई एक्स के बराबर होती है, जबकि यहाँ पर स्लोप की वैल्यू नहीं देखते, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ हम y देखते हैं. कोफिशिएंट ऑफ y क्या है इस केस में? mu11 ओवर सिग्मा y स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? r सिग्मा x ओवर सिग्मा y. इसी को हम रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y भी कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं bxy से. ओके, तो एक तरह से जो रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं ये हमें ये बताते हैं कि अगर हम यूनिट चेंज करें इन द वैल्यू ऑफ x तो y में कितना चेंज आएगा. y में कितना चेंज आएगा इफ यू
do a unit change in the value of independent variable. Okay, let's see now the properties of regression coefficients. सबसे पहली प्रॉपर्टी है correlation coefficient is the geometric mean between the regression coefficients. correlation coefficient regression coefficients का geometric mean होता है. कैसे? If you find the product of these two regression coefficients, this is r sigma x over sigma y, the value of bxy. आप ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पर अगर पहले x है तो सिग्मा x की वैल्यू पहले है और फिर y है तो फिर सिग्मा y डिवीजन में है. इसी तरह से बी वाई एक्स की वैल्यू होगी r सिग्मा y ओवर सिग्मा x. इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें r स्क्वायर मिलता है और अगर हम r की वैल्यू देखें तो दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स विथ प्लस माइनस साइन. अब क्वेश्चन ये है कि r का साइन हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे. तो इसका आंसर ये है कि r की अगर आप वैल्यू देखो इन टर्म्स ऑफ कोवेरिएंस तो ये होती है ना. बी वाई एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोवेरिएंस देखो तो ये होती है और बी एक्स वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोवेरिएंस देखो तो ये होती है. अब आप ये देखिए कि ये सारे ही जो एक्सप्रेशंस हैं इन सब में डिनोमिनेटर जो है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा. इसका मतलब ये हुआ कि बी एक्स वाई एक्स और आर इन तीनों का ही साइन डिपेंड करता है ऑन द साइन ऑफ कोवेरिएंस व्हिच इज इन द न्यूमरेटर. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों का साइन पॉजिटिव है तो आर का साइन भी पॉजिटिव होगा और अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों का साइन नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा. तो हियर साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि R is same as that of regression coefficients. इनका जो साइन होगा वही R का होगा क्योंकि साइन ऑफ ईच डिपेंड्स अपॉन द कोवेरिएंस. ओके. Next property is if one of the regression coefficient is greater than unity, the other must be less than unity. अगर एक regression coefficient greater than unity है तो दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट लेस देन यूनिटी होगा. इसका ऑब्वियस सा रीजन ये है ऑब्वियस कि अगर दोनों ही ग्रेटर देन 1 हो जाएंगे तो r की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आएगी व्हिच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा लेस देन 1 होगा तभी r की वैल्यू प्लस माइनस 1 या उससे छोटी होगी. तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वी सपोज दैट द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन यूनिटी and we will show that the value of bxy is less than 1. So we have supposed that byx is greater than 1. This implies 1 upon byx is less than 1. इसका reciprocal. And we also know that the value of r square is less than equal to 1 because r is less r की वैल्यू प्लस माइनस 1 या उससे छोटी होती है यानी -1 +1 के बीच में होती है लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी. ओके, तो आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आल्सो. सो आर स्क्वायर इज नथिंग बट फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉपर्टी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. वी हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर व्हिच इज लेस देन इक्वल टू 1. So from this equation you have bxy is less than or equal to 1 upon b by x, right? And 1 upon b by x is less than 1 here. So bxy is also less than 1. So we have supposed that the value of b by x is greater than 1 and we have shown that the value of bxy is less than 1. So this proves that if one of the regression coefficient is greater than unity, then other must be less than unity. Okay, thank you very much.